basic. I think many of these things all of you know, but still it will make sort of a bridge between what we are going to talk later. I've got some applications also, some practical applications which are used in the industry from process controller. If you want, I'll give you examples of biomedical instrumentation also. So this is on embedded systems. Now, what is your concept of embedded system? Which systems you call as embedded systems? That's the first question. Is there any rigid definition or the term is flexible? What is your concept, by the way? So that we proceed ahead with that concept. What are embedded systems? What do you think are the embedded systems? You are all of you are from electronics background, isn't it? Can I assume that? Okay. So what are embedded systems? Is computer an embedded system for that matter? What do you say? For dedicated applications. That means if I suppose ask a computer to carry out only word processing, let us say only word processing, will it become an embedded system? Why not? In that case, it is, I mean, dedicated to the task of word processing. It is dedicated to a particular function. But you are saying that it will not become an embedded system. And I also say you are right. But why not? It can do many tasks. That means if something can do many tasks, it cannot be called as embedded system. If a chip can do many functions, then it cannot be called as embedded system. It must do only one thing or at the most two. Is it the definition? Is it the concept? ऐसा लग नहीं रहा आप लोग कुछ कन्विंस्ड से नहीं हो, थोड़े बीच में वाइब्रेट कर रहे हो हैं? मुझे एक सॉलिड आंसर तो दे दो, कुछ भी दो, चलो. आई एम रियली थैंकफुल. योर आंसर वाज करेक्ट. टिल नाउ यू आर करेक्ट. Embedded systems are those which are I mean built for a particular function, dedicated function. That is fine. And computer will not become a embedded system because it is meant for, it can be used for other tasks also. But using it for other tasks does not preclude it from being embedded. But even then, it is not embedded. It is something else which doesn't make it embedded. I mean, we cannot call it embedded because of something else. Why? What is that in embedded system which is not there in the general system? See, yes, please, once again, I want to listen. Embedded system, we use controllers, and in computer, processors are used. How many of you are with her? That computers use processors, microprocessors, whereas the embedded systems use controllers as such. How many of you agree with this statement? Say, I'll make it interactive. I'll not just I'll not go on just like that. I don't know whether my style of interacting with you is okay or not. But if you feel that okay, I should go on and on and on, I can do that. Shall I do it? I just want to involve you, that's all, or there is no other motive behind it. So the answer was microprocessor versus microcontroller. That was the ladai, issue of bone of contention. Microprocessors constitute the general purpose things. Microcontrollers use specific things. मुंडी तुम्हारी कैसे ऐसे है या ऐसे है? How is your
head moving, huh? In both ways, huh? It is sort of, if there is a rotation, it contains all the motions, है ना? No, it's not that. Microprocessor and microcontroller, that is only a sort of way of putting the things, putting the peripherals. It is nothing else. If a chip contains, let us say, peripheral IOs, input output ports, RAM, this thing, ROM, everything, timer chip, you call it microcontroller. If it doesn't, then it is a microprocessor. Microprocessor is used for calculations, everybody knows. Either it can do calculation on its own or with the help of a coprocessor. If a microcontroller also does calculations, it is also processing the instructions. Basically, both are processing the instructions. See, the difference is the embedded system architecture, that it is meant for a particular function. That architecture is embedded in it. That features which make it dedicated to a particular function and which precludes it from using for general purpose, that architecture makes it embedded. You mean, do you get what I say? There is a particular architecture of embedded systems. The architecture of one embedded system will not resemble with the architecture of another embedded system. They will be altogether different, I am telling you. The operating system, the application software, everything of the two embedded systems will be different. The embedded system, which is, let us say, functioning as a receiver in a mobile phone and processing of information in a mobile phone, by which you can listen to the things and by which you can use your applications, apps, that embedded software is entirely different than the embedded system which is there in a camera, which is there in a digital camera. You know, the two are completely different. That is dedicated to only the processing of visual information. Here there is something, the aim is something else. Processing is different. Hardware as well as the software, they are different for these two applications. Yeah? But even then, microcontrollers are embedded systems, and you can argue with me, you can say why they are called embedded systems, because in that case, the architecture is sort of very general. It's not dedicated to anything. So the answer is that microcontrollers are the embedded systems of the lowest category. From there, the family of embedded systems, or the, I mean, science and engineering of the embedded system, that starts from microcontroller. They are at the bottom of the pyramid. Getting me? So that you are right, the embedded systems are used for particular applications. Their architecture, that is software, firmware, software, hardware, everything, that is meant for that application only. You know, no other task or tasks may be performed on that. That is for sure. No other task can be performed on an embedded system which is for a particular application. Other than that, you cannot do anything out of it. Okay, so such is the embedded system. There is no definition as such कि भाई this Newton's law नहीं है ये, है ना? वहाँ तो things are defined. Here things are only, I mean, you can comprehend the things, idea. You know, there is no definition as such. So okay, that is fine. And you said that the desktop computer is not the thing, an embedded system. You know, all these are just examples of embedded system. You can see. You know, even a function, even the hardware and software of a function generator is an embedded system. है ना, यहाँ पे आपको दिखा रखा है ना कुछ इंस्ट्रूमेंट, है ना, फॉर दैट मैटर इट इज एन एम्बेडेड सिस्टम. आपका CRO है, ऑसिलोस्कोप है ना,
that calculates, that gives you information even in frequency domain. उसमें DSP प्रोसेसर एम्बेडेड है, और वो एम्बेडिंग जो करता है DSP प्रोसेसर, ओनली ए फ्यू फंक्शंस इट कैन शो. उस DSP प्रोसेसर that is there within the CRO, a DSP processor which is existing within a CRO that cannot probably execute, let us say, you cannot design a filter out of it. You cannot design a filter out of it. Whatever filter has been designed in that hardware using the software, whatever digital signal processing is done, apart from that, you cannot do any digital signal processing of your own. So that is dedicated to carry out only that much which is defined for that. You know? And embedded systems are used in healthcare, mobile, printers, scanners, digital cameras, music, VCR, VCDs, automobile, and industries, and other home appliances like washing machine, microwave, that all of us know. Okay. Now that means a basic embedded system contains a microprocessor or a microcontroller. Slash is there. So we will never demarcate between a microprocessor and a microcontroller. For us, the two are same. It's only the reducing the density of the chips to perform some function, but it cannot be used as a general purpose device. It cannot be used as a computer general purpose. And there is a particular software which gives the features related to that application, and also the flexibility. Fine, it is user friendly, all those things. Hardware is used for performance, and you know that. So that means basically this constitutes a general embedded system. It may contain some analog part. In general, an embedded system may consist of some analog part, some digital part, and the actuator. By relays, etc. are possible, no problems. So those motors, small motors, allowed in embedded system. आप embedded system को यही मत समझना कि चिप ही होती है खाली. It's not a chip alone. No. ठीक है ना? I mean, whatever actuation is required, if it has to contain that also, that's also part of the embedded system. Okay. And in general, if you look at the block diagram, it starts from the sensor, A to D conversion, all digital processing through CPU. CPU can be, as I said, either a simple microprocessor, microcontroller, or a DSP processor. Maybe that it carries out some neural functions, some fuzzy logic, maybe. So it goes up to actuators, and then there is a feedback in the system. It may contain application specific ICs also, the whole card. It may be a simple chip, it may be a whole card. Okay. In general, they are standalone. Embedded system is standalone, and specifications is as per requirement, and also they are real time. That doesn't come into their definition. That is the problem. This feature, that all embedded systems are real-time systems. I don't understand why it doesn't. I mean, people have not defined it, the embedded system, using this feature. Always an embedded system will contain real-time operating system, mind you. ठीक है ना? अगर विंडोज होगी तो विंडोज रियल टाइम विंडोज होगी, वो रियल टाइम ऑपरेट. ठीक है ना? आप ये मत सोचो कि ये विंडोज जो आप यूज करते हो और आपके मोबाइल की जो विंडोज है, जो विंडोज बेस्ड है, मतलब एंड्रॉइड बेस्ड नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. ठीक है ना? वो सेम नहीं है भैया. ठीक है ना? वो विंडोज डिफरेंट है, ये विंडोज डिफरेंट है. तो क्योंकि जो कंप्यूटर की विंडोज है, तो वो एक्चुअली वो उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग, आरटॉस नहीं माना जाता. ठीक है ना? आरटॉस, ये लाइनक्स वगैरह ये सब हैं, ये WinCE, QNX, there are certain operating systems which are called real time.
others are not real time. ठीक है ना? तो ये इनकी, and these are the advantages of embedded system, features कह लो. Always they will result in small size hardware due to the reason that they are either containing ASICs, application specific ICs, or sometimes they are made out of FPGA also. You know, otherwise also hardware is, I mean, architecture is cast that way, so they become small in size. Low power, efficient use of PCB space, high performance in a small size, high mega instructions per second, or by power consumption ratio. Per unit power consumption, more instructions can be executed. High bandwidth of the bus. Low interface bottlenecks, tailored to specific application. All this, embedded controllers. If they are, whenever they are there, they will have microprocessor and space to store the program and data and certain peripherals. Okay. The most common microcontrollers which are used in embedded systems, they also have the width. Don't think if a microcontroller is made specifically for a particular function, then it will not have data bus widths or etc. Everything is like that only. Only thing is that architecture is different from normal microcontrollers, but bus width is always there. Data bus width and address bus width, all those things are existing. So, and typical clock frequencies which are used in embedded systems are 12 to 16 megahertz. 16 and 32-bit controllers are high-end applications, and these are some of the chips based on which embedded systems have been made. But normally, I mean, such embedded systems are not existing commercially, I'll say. These are not commercial existing systems based on these things. They are made in the lab or in the projects only. Okay. Whenever there is a commercial system, then its fabrication is done in a different way. Instruction set generally is designed in such a way that 1 microsecond is taken per instruction. That's a normal industry standard. 1 microsecond per instruction for an embedded system. These are the controllers from which, as I said, lower end embedded systems. Controllers constitute lowest end embedded systems. So if you use these 8051 AVR or PIC, ARM7, ARM9, they are, of course, they fall under the category of embedded system. Lowest ones. Okay. Now, I'll tell you about the two architectures. This also you must have heard. So the embedded systems also use, or microcontrollers also use, two types of architectures, either Harvard architecture or von Neumann architecture. What is Harvard architecture? In a case of Harvard architecture, what you have is two separate memories. You can see here the data memory and the instruction memory. These are two separate memories. Correspondingly, there are two buses. That means the data bus, through which the data will come and go between the CPU and data memory, and another is the address bus, through which the address will be going to the instruction memory. Okay, so there are two buses because there are two memories always which interact with the ALU. So this is called Harvard architecture. Then after Harvard architecture, there comes, these are the features of Harvard architecture, that there are two memories, as I said, storage for data, which is read-write memory, and it has its own control signals. Then another one is read-only memory, which has its own control signals. Okay, there the instructions will be stored. And some of the machines do like that they store data within the CPU. That type of Harvard architecture is also available.
that some microcontrollers or microprocessors, they have the data storage, the data memory within the CPU, whereas the instruction memory outside the CPU. Okay, but still it doesn't change the definition. Harvard architecture definition is that there should be two memories, there should be two buses. Okay, and two memories have and different characteristics: the width, the timing, implementation, technology, addressing. For both the data and address memory, they are separate. ठीक है ना? तो दोनों मेमोरीज का ऐसे मत समझो कि कोई कनेक्शन है, बिल्कुल सेपरेट चिप्स की तरह से वो ट्रीट करते हैं हम उनको. ठीक है ना? The advantage of Harvard architecture is that CPU can read an instruction and from the instruction memory, of course. Instruction will be read from the instruction memory only, and it can read or write the data from or to the data memory simultaneously. Once again, it can read the instruction from the instruction memory and it can read write the data to the data memory at the same time. एक जगह पे वो कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी जगह पे दूसरा कार्यक्रम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना? That means Harvard architecture results in the faster operation always. And such processors which use Harvard architecture are called RISC controllers. ठीक है ना? Reduced instruction set controllers. Those chips, those microcontrollers which use Harvard architecture are called RISC. In general, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वैसे ये डेफिनेशन. ठीक है ना? जनरल ऐसा बोलते हैं उनको. ठीक है ना? मॉडिफाइड जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें क्या है कि प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, दोज आर टू सेपरेट मेमोरीज ऑफ कोर्स. ठीक है ना? बट द बस इज सेम, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्टली शोन हियर. ठीक है ना? इट्स नॉट शोन करेक्टली. ठीक है ना? बट द डिफरेंस इज that there are two memories but there is only a single bus and that single bus will be multiplexed of course. उसी पे डेटा चलना है जैसे 8085 में आप करते हो. ठीक है ना? कि डेटा बस जो है और जो ये है एड्रेस बस जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड होती है. लोअर वाला मल्टीप्लेक्स्ड होता है ना AD0 से AD7 तक का. तो वो है मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर. मेमोरीज दो हैं, बस एक ही है. तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज लाइक दिस ओनली. है ना? देन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का मतलब ये है बस भैया एक ही मेमोरी कर लो बहुत है. ठीक है ना? उसी में डेटा स्टोर कर लो यार, उसी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसी से. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? हम एक ही मेमोरी के उसमें आइदर वी मेक टू पोर्शंस, लेकिन ऐसा है नहीं. पहले वाले वॉन न्यूमैन थे वो बहुत पुराने कि सिंगल मेमोरी के दो पार्ट्स हम कर लेते थे कि भाई वन पार्ट विल कंटेन डेटा. अब ऐसा नहीं है, अब तो सीक्वेंशियल है, अपने आप पता लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट वो जो है वो ऑपरेंड जो है उस वो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा. मतलब जो 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं तो जिसमें फर्स्ट बाइट इज इंस्ट्रक्शन, सेकंड बाइट इज डेटा, तो सेकंड बाइट इज डेटा. सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो नेक्स्ट में दैट मींस नेक्स्ट बाइट जो है फिर वो इंस्ट्रक्शन है, फिर वो डेटा नहीं है. तो उससे पता चल जाता है. ठीक है ना? तो वॉन न्यूमैन का मतलब ये है कि देयर इज ए सिंगल मेमोरी, देयर इज ए सिंगल बस. ठीक है ना? दीज आर कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स. ठीक है ना? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड. और नेचुरली इस केस में ये तो लिमिटेशन है ही कि आइदर यू कैन रीड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी or you can read write the data at one point of time. दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता. ठीक है ना? Such microcontrollers are called CISC microcontrollers, complex instruction set controllers. ठीक है ना? तो ये है. अब CISC अप्रोच मतलब क्या है? CISC अप्रोच बेसिकली ये है. एग्जाम्पल उसकी किसको CISC कहते हैं? जैसे मान लो तुमने इंस्ट्रक्शन दे दी मल्ट 2,5. तो अब ये जो मल्ट इंस्ट्रक्शन है ये आपके सिंपल इंस्ट्रक्शन में नहीं आती है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में आती है मल्ट. ठीक है ना?
मल्ट जो है उसको करने के लिए एक स्पेशल आर्किटेक्चर चाहिए, स्पेशल रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है ना। एक उसमें जो है तुम्हारा मल्टीप्लायर रहेगा, एक में मल्टीप्लिकेंड रहेगा। उसमें मल्ट करने के लिए क्या है कि शिफ्टिंग होगी, ऐड, शिफ्ट एंड ऐड मेथड पढ़ा होगा यार कभी तुमने, ठीक है ना, कि मल्टीप्लिकेशन हम या तो देखो दो तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशन ना, या तो रिपीटेड एडिशन, तो वो तो बड़ा स्लो है यार, बाप आदम के जमाने का, कि खाट बिछा के सो जाओ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन जब उठेंगे तो सुबह को, ठीक है ना। एक तो वो है, और दूसरा भैया ये है, शिफ्ट करो एक बिट को, ऐड करो, शिफ्ट एंड ऐड मेथड। तो फिर आर्किटेक्चर उसका उसी तरह से होता है कि मल्टीप्लायर जो है वो पड़ा रहता है, मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट होता है, ऐड होता है। तो ये है आइडिया। इस केस में क्या है, थोड़ा सा कंपाइलर जो है उसको ज्यादा काम करना नहीं पड़ता। कंपाइलर हैज टू डू वेरी लिटिल वर्क टू ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज। तुम अगर प्रोग्राम करोगे ना, तो तुम तो लेट्स से सी में प्रोग्राम लिखोगे ना, जिसको कि असेंबली लेवल में कन्वर्ट किया जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर तो असेंबली लैंग्वेज समझता है तो सब, या मशीन लैंग्वेज, मतलब एक ही बात है, ठीक है ना, वो तो वही समझता है, तो कंपाइलेशन तो करना है ना। तो इस केस में माइक्रो कंट्रोलर का जो क्रॉस कंपाइलर है उसको ज्यादा काम धाम नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। नहीं, दूसरी बात यह है कि कोड जो है वो तो शॉर्ट बनना ही है भाई, सारे का सारा मल्ट जैसी इंस्ट्रक्शन एक ही उसमें आ गई, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा कि बिल्ड इट इज मैटर ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली इनटू द हार्डवेयर। मल्ट के लिए हिसाब किताब पहले से सेट है कि ये होगा मल्ट के टाइम पे, ठीक है ना। वही रजिस्टर फिर यूज होंगे मल्ट में। मल्ट में ऐसा नहीं कर सकते तुम एक रजिस्टर में रख दिया, दूसरे में रख भी दोगे ना, रख दो। जैसे ही मल्ट करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा जो 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 मल्टीप्लायर है और जो मल्टीप्लिकेंड है, ऑटोमेटिकली दे विल गो इनटू ए पर्टिकुलर रजिस्टर which are designed, which have been designed for carrying out the multiplication। वहां अपने आप जाएंगे, तभी होगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बिना नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। जबकि जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का केस है, वहां पे क्या है, वहां पे सिंपल इंस्ट्रक्शंस के टर्म्स में आपको लिखना पड़ता है प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोबेबली अब ये मल्ट है जैसे, तो मल्ट जो है वो आपको लोड पहले करना पड़ेगा, यहां से यहां लाओ, वो 8085 वाली बात। ये थोड़ा सा फर्क है, अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज करो तो आपको कई सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं मिल जाएंगी ऐसी जो कि डायरेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। उनमें मल्ट भी है, ठीक है ना, उनमें मल्ट भी है, डिव भी है, ठीक है ना। और दोज इंस्ट्रक्शंस दे कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। जबकि 8085 में तो मल्टी इंस्ट्रक्शन इज नॉट देयर, है ना। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू राइट योर ओन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो वहां पे जो है इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीजेस। प्रोग्राम की लेंथ तो बहुत सारी हो जाएगी, लोड करोगे, ये करोगे, फिर ऐड उसमें वो ऐड करोगे, उसको शिफ्ट करोगे, है ना। बट लेकिन इंस्ट्रक्शंस ओवरऑल जो है ना, वो आपकी जो है कम हो जाएंगी। कि भाई एक शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन चाहिए, लेटर से एक ऐड की चाहिए, एक लोड की चाहिए, एक स्टोर की चाहिए। इस तरह से करके सारी चीजें, ऑल द ऑपरेशंस कैन बी मैनिपुलेटेड इन दिस विद दिस इंस्ट्रक्शंस ओनली। समझ रहे मेरी बात, ठीक है ना। तो फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड बट द प्रोग्राम लेंथ गोज लाइक एनीथिंग। तो वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है ना, विच इज ब्रोकन इनटू लोड एंड देन स्टोर एंड देन डू दिस एंड शिफ्ट दिस। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सिस्क एंड डिस्क इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। कि सिस्क इंस्ट्रक्शन में देयर इज एन एम्फेसिस ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर टफ हो जाता है डिजाइन करना, ठीक है ना। रिस्क इंस्ट्रक्शन में देयर इज एन एम्फेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, क्या बेसिक इंस्ट्रक्शन रखे हम, ठीक है ना, वो डिजाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मल्टी क्लॉक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे सिंगल क्लॉक सिंपल इंस्ट्रक्शन होती हैं। और ज्यादातर कार्यक्रम जो है सिक्स प्रोसेसर्स में इट इज मेमोरी टू मेमोरी, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सारा का सारा थ्रू रजिस्टर्स ज्यादा होता है डिस्क में, रजिस्टर टू रजिस्टर, ठीक है ना। कोड साइज इज स्मॉल, मोर साइकिल्स पर सेकंड, यहाँ साइकिल्स पर सेकंड आर लेस,
ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, है ना, इन दो टाइप के प्रोसेसर्स में। यहाँ पे लेस ट्रांजिस्टर्स आर, यहाँ पे मोर ट्रांजिस्टर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो चलो खैर, तो ये इन जनरल मतलब आप देखो कि जो इम्पोर्टेंट वो हैं प्रिवेलेंट प्रोसेसर्स हैं, उसमें ARM7, ARM9, पेंटियम और DSP प्रोसेसर शार्क फेमस प्रोसेसर है ये। तो देखो ARM7 जो है फॉर एग्जांपल रिस्क प्रोसेसर है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूज करता है। मैंने कहा था ना कि हार्ड एंड फास्ट मत समझ लेना, इसको गांठ बंधवा लेना, ठीक है ना, कि रिस्क प्रोसेसर हमेशा यही होंगे जो कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर को यूज करेंगे, या सिस्क प्रोसेसर हमेशा वॉन न्यूमैन को। नो, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग। ये वही दिखा रहा हूं मैं तुमको कि जो मतलब एक्सेप्शंस है ना, एक तरह से दोज एक्सेप्शंस आई एम टेलिंग यू नाउ कि ARM7 जो है इट्स ए रिस्क प्रोसेसर which uses von Neumann architecture, and like ये नहीं कि वो करता है तो इसलिए होता है, गांठ बनवा लेना। चलो सक्सेना जी, टॉयलेट घूमे आए। so this is the situation, and then the processors either they will be using sequential approach, they will be using sequential approach। sequential approach का मतलब ये है कि फैच कर लिया इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद में डेटा फैच किया, उसके बाद में डेटा को स्टोर करेंगे विद इन ए रजिस्टर, फिर उसके बाद में मतलब वन आफ्टर द अदर, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल अप्रोच। द अदर अप्रोच इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मीनिंग क्लियर ही है कि भाई व्हेन वन इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम दूसरी इंस्ट्रक्शन भी आ सकती है, या दूसरा डेटा मतलब उस टाइम कहीं आ रहा हो सकता है, ठीक है ना, कॉमन है कुछ पहली साइकिल में और सेकंड साइकिल में विद इन द सेम टाइम स्पैन, ठीक है ना। तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं इसकी कि टास्क कैन बी, ठीक है ना। अब रिस्क प्रोसेसर्स जो हैं उनकी पाइपलाइनिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। रिस्क प्रोसेसर्स के साथ में जनरली पाइपलाइनिंग इज नॉट इन केस ऑफ रिस्क। पाइपलाइनिंग जो होती है वो सिस्क प्रोसेसर्स में इंप्लीमेंट की जाती है, रिस्क प्रोसेसर्स में नहीं होती। रीजन बीइंग कि देखो इफ सपोज देयर आर इंस्ट्रक्शंस सर्टेन, these are the sequence of instructions, fetch instruction from memory, this is the normal way of executing an instruction. Then you have to read the register and you have to decode the instruction, execute the instruction. After that you have to during execution if an operand is needed you have to bring that operand, ठीक है ना, into the data memory or to the whatever, and then you have to write a result maybe into a register, maybe into memory, whatever. And in general this is how the instructions are executed, ठीक है ना, from fetch to final result. अब suppose कर लो there is a program according to this, okay, do this, load this, add this, हो गया, है ना, हो गया सब कुछ, रिजल्ट भी तुमने रख लिया, ठीक है ना, स्टोर हियर, ओके, सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है ना। बट व्हाट हैपेंस इज कि आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली इन दिस प्रोसेसर पाइप शुड टेक 1 क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में एक काम हो जाना चाहिए, वन टास्क, ठीक है ना, सो दैट द प्रोसेसर फिनिशेज एन इंस्ट्रक्शन इन ईच क्लॉक साइकिल एंड देयर इज एन ऑन द एवरेज देयर इज 1 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। लेकिन
सपोज कर लो कि रिस्क प्रोसेसर्स जो हैं, जो प्रैक्टिकली हैं, वो मोर देन 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन लेते हैं। दिस इज द फैक्ट। ये तो आइडियली विच इज रिक्वायर्ड कि एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में हो जानी चाहिए, सेकंड उसमें होगा। लेकिन क्या होता क्या है प्रैक्टिकली कि 1 टास्क इज नॉट कंप्लीटेड इन 1 क्लॉक साइकिल, होता नहीं, ठीक है ना, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज कहीं पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गई, प्रोग्राम में ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गई। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन जंप, मतलब जंप आ गया तो अब गया प्रोग्राम। अब तुम्हारी सारी की सारी पाइपलाइनिंग जो तुमने स्टोर किया था वो तो जंप की वजह से काम नहीं ना आएगा आगे, वो तो दूसरी जगह भागना पड़ेगा प्रोसेसर को, है ना। तो पाइपलाइनिंग किस काम की रही तुम्हारी, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये है, पहले 2 बात कही मैंने कि एक तो डेटा डिपेंडेंसी, एक इंस्ट्रक्शन इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड इन 1 साइकिल, एंड जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं आया तब तक नेक्स्ट टास्क विल नॉट बी अकम्प्लिश्ड, है ना। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आना चाहिए तभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट है तो let us say the situation is that the answer of the first instruction becomes the operand of the next instruction. In that case, the result of first instruction is very much needed before the second one is executed. That is called data dependency. तो data dependency में क्या है, for example तुमने कहा कि add R3 and R2 and place the result in R1. Add R3 and R2 and place the result in R1. ठीक है ना। अब यहां क्या है, तुमने क्या कहा कि एड R5 एंड R4 प्लेस द रिजल्ट इन R3, सेकंड इंस्ट्रक्शन में ये कहा तुमने, ओके। अब R3 देखो तुम्हारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, सेकंड इंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व है। अब जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन R3 कंटेन्स सम डेटा, R3 कंटेन्स सम डेटा लेट अस से, उस केस में क्या होगा, जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी मैं उस डेटा को ओवरराइट, मतलब कुछ और कर नहीं सकता ना उस डेटा के साथ। आई कैन नॉट राइट अनदर थिंग ऑन दैट, है ना। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चल रही है तो सेकंड वाली विच इज आस्किंग कि R3 में कुछ और स्टोर कर दो, दैट कैन नॉट बी डन। समझ रहे हो ना बात को। तो ये प्रॉब्लम है, डेस्टिनेशन की प्रॉब्लम हो गई या सोर्स की प्रॉब्लम हो गई। मतलब R3 यहां पे कॉमन डेस्टिनेशन, एक केस में सोर्स बना हुआ है, दूसरे केस में डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो जब तक पहला एक काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा, नहीं तो R3 के कंटेंट्स जो हैं गड़बड़ हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी। दूसरा ब्रांच इंस्ट्रक्शन तुम देख लो कि तुमने कहा कि ऐड R3 एंड R2 एंड प्लेस द रिजल्ट इन R1, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कुछ कहा, कुछ हुआ, ठीक है ना। अब तुमने कहा कि ब्रांच इन इफ इक्वल, बी इक्वल का मतलब ब्रांच इफ इक्वल कुछ कर दिया कि लूप पे चले जाओ। R3 एंड R6 के कंटेंट अगर इक्वल हैं, ठीक है ना, R3 एंड R6 के कंटेंट्स अगर इक्वल हैं तो गो टू लूप, ठीक कह रहे हो ना। अब वही बात आ गई यार कि इसके बाद में तुम आफ्टर दिस सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन तुम तो पाइपलाइन लगाए बैठे थे, अगली वाली इंस्ट्रक्शन को लिए बैठे थे कि मजे से कि एग्जीक्यूट होगी तो अगली वाली हो जाएगी। अगली वाली का तो मौका ही नहीं आया क्योंकि तुम भाग लिए वहां से, दौड़ गए भाई, ठीक है ना, कहीं और ही चले गए लूप पे। अब लूप पे गए तो वहां से पाइपलाइनिंग शुरू करनी पड़ेगी फिर मुझे बनानी। तो इसलिए जनरली व्हाट हैपेंस इज RISC processors do not use pipelining, CISC processors use pipelining, ठीक है ना। अच्छा, बाकी जो बेसिकली लोअर एंड के देखो स्पेसिफिक तो कवर हो नहीं सकते। अब मैं तुम्हें मोबाइल का प्रोसेसर बताने लगूं तो कोई मतलब थोड़ी उसका, वो तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए है, तो उसका आर्किटेक्चर तो बनाने में कोई फायदा नहीं है। देखो, ठीक है, इसलिए आर्किटेक्चर इन्हीं के चलते हैं कि भाई विच यू कैन, द एम्बेडेड सिस्टम विच यू कैन मेक योरसेल्फ, ठीक है ना। तो उसमें 8051 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। और इसका आर्किटेक्चर जो है, जैसा ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, क्योंकि 2 मेमोरीज इसमें यूज होती हैं, प्रोग्राम मेमोरी और रैम। रैम जो है वो विद इन द, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, रैम तुम बाहर भी कर सकते हो भाई, तुम्हारा 128 बाइट्स की रैम होती है,
नॉर्मल 8051 वाले जो प्रोसेसर्स हैं, 8751 ये सारे, इनमें 128 बाइट की रैम होती है. अगर इफ 128 बाइट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, ऑफ कोर्स देन इन दैट केस बाहर से रैम लगानी पड़ेगी. लेकिन जनरली ये है कि रैम इंटरनल जो है, पहले बात हुई थी ना कि जनरली प्रोसेसर्स जो है ना, जो रिस्क प्रोसेसर्स होते हैं, तो वो उनमें रैम जो है ना अंदर ही कर लेते हैं प्रोसेसर के. आ जाओ भाई, उससे फास्टर हो जाता है काम जरा, ठीक है ना. लेकिन जहां तक एक्सटर्नल इसकी बात है, प्रोग्राम मेमोरी की, 4K तो चलो प्रोग्राम मेमोरी इंटरनल है, वो तुम्हें भी पता है. 4K से अक्सर काम नहीं चलता, ठीक है ना. जनरल पर्पस प्रोग्राम अगर जनरली लंबे होते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम हो ना छोटा, मतलब तब तो हो जाएगा. लेकिन फिर हम जब देखते हैं ना इसको यूज करने की 8051, तो पहला ही मतलब प्रोग्राम जो है 5K से कम का नहीं लिखा जाता. तो यार एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना भी आर्ट है, ये मैं बता दूं कि सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बस एक माइक्रो कंट्रोलर है एंड यू कैन यूज इट. यू हैव टू यूज इट एफिशिएंटली. एफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब एनर्जी कंजम्पशन मत समझ लेना. तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, कितनी कम इंस्ट्रक्शंस में तुम वो काम कर सकते हो. दूसरा जो है उसमें 1K लगा रहा है, किसी ने 100 इंस्ट्रक्शंस में वो काम कर दिया, तो नहीं चली, ठीक है ना. तो मेमोरी कैन बी अगेन, जो प्रोग्राम मेमोरी है दैट इज 4K इंटरनल, बट दैट कैन बी एक्सटर्नल ऑल्सो इफ समथिंग एल्स इज नीडेड. तो मैं पता है इसमें 6 इंटरप्ट्स हैं, ठीक है ना. और ये है 8051 में कुछ खास, इसमें तो 2 टाइमर्स हैं, सब पता ही है तुम्हें. 8051 व्हाट इज नॉट नोन, 8051 सबका इस लेवल तक यूज होता है, हो ही जाता है, ठीक है ना. ये एक 8051 से सिंपल सा इंटरफेस है, हाउ इट इज इंटरफेस्ड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो एलईडीज के साथ में अगर इंटरफेस करना है तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस है, सिंपल इंटरफेस दिखाया है कि भाई इसके पोर्ट जो है, इसका जो पोर्ट्स हैं, दोज कैन बी यूज्ड टू इंटरफेस विद द एक्सटर्नल डिवाइसेस. तो इस तरह से एलईडी के प्रोग्राम जो है हम जनरली सी लैंग्वेज में लिखते हैं. तो ये एक प्रोग्राम का वो है. क्रॉस कंपाइलर अपने आप इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. तो दिस इज द वे इट इज रिटन. पूरा तुम देखो वैसे ही है, सी का आर्किटेक्चर जो होता है सी लैंग्वेज का, इंक्लूड कर लिया 8089 से, उसको क्रॉस कंपाइलर को इंक्लूड कर लिया अपने अंदर, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं. वॉइड से स्टार्ट, मतलब जनरल बात है, सी प्रोग्राम तो लिखे होंगे ना तुम लोगों ने कभी. वॉइड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना. मेन प्रोग्राम है ये. ये डिक्लेरेशन से अनसाइंड इंटीजर है, ये फॉर लूप है, ऐसा ऐसा करके. तो जनरल मतलब सी लैंग्वेज में यू कैन राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर 8051. तो ये प्रोग्राम इसका लिखा हुआ है, ब्लिंकिंग एलईडीज ऑन पोर्ट P1. ये पोर्ट P1 पे देखो, पोर्ट P1.0 से 1.7 तक एलईडीज थे ना ये, तो उसका फिर प्रोग्राम लिखा हुआ है कि भाई तुम एलईडीज को इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना. ये वेट ए सेकंड जो है वो एक सब रूटीन टाइप है, ऊपर लिखा ही हुआ है वेट ए सेकंड विच हैज बीन कॉल्ड हियर, है ना. विच डजंट नीड एनी आर्गुमेंट्स. वेट ए सेकंड के बाद में ब्रैकेट्स देख रहे हो, ब्रैकेट्स के अंदर तो कुछ नहीं है, दैट मीन इट डजंट नीड एनी आर्गुमेंट, ठीक है ना. कोई वेरिएबल पास ऑन नहीं करना इसको हमने, तो सब रूटीन ये जनरल है, ठीक है ना. पिक माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं, पिक माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं, दे आर बेस्ड ऑन मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है ना. पिक सबसे फेमस यही है, पिक 18F जो भी है, इसी सीरीज के हैं सारे वेरिएंट्स जो हैं इसके. जैसे वहां पे वेरिएंट्स हैं 8051, 8751, ठीक है ना, 80C51, ऐसे ऐसे वहां पे भी वेरिएंट्स है ना. इवन नंबर ऑफ पिंस में वेरिएंट्स हैं वहां पे. 40 पिन का भी है तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर 8051, 20 पिन का भी है, ठीक है. तो 20 पिन में ले चलिए, पिंस लिमिटेड है, पोर्ट्स नहीं आपको एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है ना. वहां पे 20 पिन का यूज, अगर इफ यू डू नॉट नीड पोर्ट्स देन 20 पिन इज वेरी इजी. तो जो पिक माइक्रो कंट्रोलर दैट इज बेस्ड ऑन मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, रिस्क प्रोसेसर है ये भी, ठीक है ना. और
कुछ खास बात? ये तो बात हो गई। हार्वर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर ट्रांसफर्ड ऑन सेपरेट, वो तो हो ही गया। हार्वर्ड आर्किटेक्चर, दिस इज टू स्टेज पाइपलाइनिंग is available here, that one instruction is executed while the other instruction is being fetched. उस वे में ये थोड़ा सा 8051 से बेटर है। 8051 हमको पाइपलाइनिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करता, ठीक है ना, पिक माइक्रो कंट्रोलर करता है, ठीक है ना। और क्या है, ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस है सारी, सिंगल, ठीक है ना, वन वर्ड पर इंस्ट्रक्शन मतलब, और तो इसमें कोई खास बात नहीं है। इनके डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, है ना, प्राइवेट वेंडर्स जो हैं, दे डेवलप द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर दिस माइक्रो कंट्रोलर। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में जैसा कील है, कील यूज किया ही होगा, वो एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। 8051 के कील ये नहीं, उसने और के लिए भी कर रखा है वैसे कील ने, बट फेमस वहीं से हुआ कील सबसे ज्यादा 8051 से। तो अब पिक का जो है ये एक्सप्लोर 18 जो है, ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हार्डवेयर एक्सप्लोर 18 नाम से फेमस है ये। और एमपी लैब जो है, दैट इज द लैंग्वेज विच इज पिक की लैंग्वेज जो है, एमपी लैब है। तो इसमें और कोई खास बात तो है नहीं यार। सी कोड कंपाइलर है, अवेलेबल है, ठीक है ना। ये जस्ट एक प्रोग्राम है इसका, पिक के लिखा हुआ सी में, अगेन सी में, सी तो मतलब लिख ही सकते हो ना, तो वो इसका क्रॉस कंपाइलर इसके उसमें कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। 8051 का सी क्रॉस कंपाइलर उसके उसमें करेगा। तो ऐसे ही मतलब है ये प्रोग्राम्स की भी। सी लैंग्वेज तो चेंज नहीं होगी ना, और वंस यू यूज हाई लेवल लैंग्वेज तो देन यू नीड नॉट नो द असेंबली लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोलर। फिर तो तुम्हें उस पर्टिकुलर कंट्रोलर की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज देखनी ही नहीं है, ठीक है ना। एड्रेसेस देखने हैं बस, उसके पोर्ट, ये उसकी आर्किटेक्चर पता होनी चाहिए आपको। जब तक आर्किटेक्चर पता नहीं होगी तब तक उसका उसके पोर्ट 1 का एड्रेस क्या है वो कैसे पता लगेगा। तो आर्किटेक्चर तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हेन यू आर राइटिंग, यू शुड नो द आर्किटेक्चर फर्स्ट, देन ओनली यू कैन राइट द प्रोग्राम, ठीक है ना। अदरवाइज ये जो तुम्हारे सारे आ रहे हैं 0xFF वगैरह, ये तो उससे आए ना कि पोर्ट सी हैज बीन गिवन दिस डेटा, मतलब उसका एड्रेस जो है ये है, ठीक है ना, FF है उसका एड्रेस। 0xFF का मतलब FF एड्रेस है उसका। बाकी तो सी का वो है कि बाइट इन सी इज रिटन एज 0x करके लिखी जाती है, ठीक है ना। और नॉर्मल है बिल्कुल सी लैंग्वेज, ठीक है। आर्म माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है ना, ये भी बहुत फेमस है। इनकी ये और ज्यादा पावरफुल है, ARM 7 ARM 9 जो है, ठीक है ना। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये 16 और 32 बिट है। बेसिकली पावर यहां से आती है कि दे आर ओरिजिनली 16 एंड 32 बिट, जबकि दो जो वो जो है, जो तुम्हारा 8051 है, वो बेसिकली 8 बिट है ना। तो उसके आगे फिर आया पिक जो है, वो 8 बिट भी है पिक माइक्रो कंट्रोलर्स, और 16 बिट भी है पिक, ठीक है ना। आर माइक्रो कंट्रोलर 16 और 32 बिट डेटा बस, ठीक है ना। और एक इसमें 32 बिट बैरल रजिस्टर, मतलब इसने कुछ ना डीएसपी चिप जो होती हैं, ठीक है ना, उनमें जो हार्डवेयर फीचर्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए थोड़े से। बैरल रजिस्टर जो है ये डीएसपी प्रोसेसर का अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वहां से आया है ये। वहां पे ज्यादा मैथमेटिक्स जो है ना डीएसपी में ज्यादा करनी पड़ती है, काफी हैवी कोरिलेशन करना है दो वेवफॉर्म्स का, ठीक है ना। तो वहां पे ज्यादा मैथमेटिक्स है, तो वो मैथमेटिक्स जो है वो इनसे होती है बैरल रजिस्टर से, वो इसने लेकिन इसमें दे दिया। तो ये एक तरह से बीच की चीज है थोड़ी सी, बिटवीन डीएसपी प्रोसेसर एंड नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। पाइपलाइनिंग इसकी में पूरी है, ठीक है ना। रजिस्टर्स भी 1632 बिट के हैं, बाकी बस तो होनी है, ठीक है ना।
इंस्ट्रक्शन विड्थ जो है 32 बिट्स, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन विड्थ ऑफ 32 बिट्स, ठीक है ना। वर्ड साइज जब 16 हो गया तो दैट मीन्स हर एक इंस्ट्रक्शन अंदर 2 वर्ड्स लॉन्ग है इसमें, आर्म प्रोसेसर में, ठीक है ना। मोस्टली सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, और जो नॉर्मल ब्रांच है, जेएमपी इंस्ट्रक्शन जो है जहां पे अनकंडीशनल ब्रांच कर देते हो तुम, वो सबसे खराब प्रोग्रामिंग समझी जाती है। वर्स्ट प्रोग्रामिंग वो करता है जो जंप इंस्ट्रक्शन यूज करता है दुनिया में, ये समझ लो, गांठ बांध लो इस बात को। नोबडी वांट्स जंप इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो कुछ का कुछ करती है तुम्हारी। इसमें भी जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसको भी खराब करती है। तुम कैश मेमोरी तुम्हारी है, ठीक है ना, जैसे तुम जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हो वो कैश मेमोरी बेकार हो गई तुम्हारी, ठीक है ना। अदरवाइज वो कैश मेमोरी वो चीजें स्टोर करती है विच यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन, वो कैश मेमोरी वो कोड स्टोर करके रख लेती है, ठीक है ना। जब तुम जंप करते हो वो समझ जाती है कि अब प्रोग्राम पता नहीं कहां गया, ठीक है ना, अब वो इंस्ट्रक्शन शायद ही आए जो पहले कभी आई थी, तो सफाई कर देता है फिर कैश मेमोरी की, ठीक है। तो ये आइडिया है। बाकी एड्रेसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एड्रेसिंग मोड्स जो है ना, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग जो है वो बेटर समझी जाती है। तुमने एड्रेसिंग मोड पढ़े होंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये एड्रेसिंग है ना, हाँ, उसमें जो बेस्ट एड्रेसिंग मोड है ना, दैट इज सपोज टू बी द इंडेक्स्ड वन। उसमें एक ही चीज को चेंज करके ना सारा उसको घुमा सकते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह। डेटा को का एड्रेस जो है बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं नया, अगर इंडेक्स एड्रेसिंग यूज करें हम, वो इसमें है आर्म माइक्रो कंट्रोलर में ज्यादा। बाकी तो ये है खैर, इससे तो ये तो आर्म का अगर तो मैं ये दे दूं तो ये वैसा ही लगेगा देखने में, तो जैसा 8051 का लगता है देखने में, तो ये एक जैसे से ही लगते हैं सारे, ठीक है ना। तो इसमें भी खैर कोई ज्यादा कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि ये इसका आर्किटेक्चर है। 32 बिट है सारा, ALU FALU रजिस्टर बैंक्स वो सब 32 बिट्स हैं, ये एक नई बात है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो जो नॉर्मल पीसी बस है ना, वो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि तुम जो है ना, जो आर्म माइक्रो कंट्रोलर है पीसी के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरफेस होते हैं, ठीक है ना। दैट इज वन मोर प्रॉपर्टी कि भाई कंपेटिबिलिटी जो है ना बस की वजह से ऐसे डिजाइन किया गया है ये आर्म का माइक्रो कंट्रोलर। आर्म का जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो भी कील का ही है, ये वाला कील ने सबके लिए बना रखे हैं, जिसमें कि कील ने ये प्रोविजन दिया है कि एक सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है, ZigBee है, एक ये है, कि ये है। तो खैर ये तो सब फीचर्स ऐसे ही चलते रहते हैं। अगर कंपैरिजन वाइज देखो तो ये है इनका कंपैरिजन, तीनों जो इसमें माइक्रो कंट्रोलर आजकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माने गए हैं। 8051 जैसे मैंने कहा 8 बिट, पिक जो है वो 8, 12, 14, 16 बिट ये वर्जन्स आते हैं पिक के, ठीक है, जिनमें नॉर्मली तो खैर 14 तो शायद ही कोई यूज करता हो, लेकिन क्रिस्टल फ्रीक्वेंसीज सबकी ऑपरेटिंग वोल्टेज तो ठीक है 5 वोल्ट तक है। फ्लैश मेमोरी जो है इतने किलोबाइट की है, ये 2 MB तक जाती है इसकी। पेरिफेरल्स कौन कौन से अटैच कर सकते हो इनके साथ में, यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ये वो, तो ये इनकी कंपैरिजन है। ये तो जनरल है माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट प्रोसेस। आप क्या करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, जब डेवलपमेंट किट दी होगी तुमको, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दिया होगा जब तुमको कील का या किसी का भी, ठीक है ना, तो फिर किस तरह से हम चलते हैं उस डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, ये डीबग करते हैं कोड को, ये सब वो प्रोसीजर है। ये तो पर्टिकुलर
in general how it is designed, an application using a platform how it is designed. ठीक है ना? तो अब तुम जो है ये देख लो कि कई लोग कहते हैं कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, जितना माइक्रो कंट्रोलर्स में होना था हो गया, ठीक है ना? तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? कभी भी दुनिया रुकती नहीं है, नई नई चीजें आती रहेंगी, ठीक है ना? जिसमें कि स्पीड, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रुक गया, लेकिन कई जगह पे ये चलता है कि क्या सैचुरेशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सैचुरेशन आ गया, ठीक है ना? ये डिफरेंट मैं तुम्हें एप्लीकेशंस जो है ना वो बता रहा हूं कि, और इसमें तुम अपना दिमाग भी लगा सकते हो थोड़ा सा, मतलब कि ये जनरल बातें हैं। अगर सपोज कर लो मुझे इस रूम है, ये रूम है, इस रूम में मुझे डस्ट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है, ठीक है ना? तुम कहोगे जी तो आते हैं मार्केट में, तो आते तो हैं यार, चलो मान लिया, ठीक है ना? लेट से तुम्हें डिजाइन करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन दिस रूम, दैट मीन्स हाउ मेनी mg पर सेंटीमीटर क्यूब डस्ट इज एग्जिस्टिंग। वो किस लिए करना है? चलो इस रूम की एयर तो क्लीन है यार, कहीं पे ऐसा भी फैक्ट्री होगी ना, सीमेंट फैक्ट्री, जहां पे सीमेंट के पार्टिकल्स इतने हैं, ऐसी टेक्सटाइल फैक्ट्री, वहां पे यार सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे मतलब डिफाइन करने पड़ते हैं ना, रेगुलेटरी मेजर्स आ जाते हैं कि भाई वेदर ये हमारी हेल्थ के लिए वो भी है कि नहीं, या कुछ किया जाए इसके लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स in this. Concentration is always measured in how many dust particles in grams, weight wise, are existing per unit volume of air. Per unit volume of air. cc सेंटीमीटर क्यूब बता सकते हो तुम, मीटर क्यूब, उसकी तो कोई चक्करबाजी नहीं है, वो तो कन्वर्शन ही है खैर, लेकिन ये है सिचुएशन। तो अब आप क्या सोचते हो कि क्या प्रिंसिपल यूज किया जाए इसके लिए, डस्ट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए? व्हाट प्रिंसिपल यू थिंक इज बेस्ट? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? ये चीजें मतलब दिस इज व्हाट वी डू एट आवर प्लेस। उसके एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग क्या करते रहते हैं। तुम सोचते हो कि R&D में ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो बैठते तो हैं, चलो ठीक है ना, लेकिन कुछ कर भी लेते हैं फिर। तो क्या होता होगा, कैसे मेजर करते हो? कोई बताता कोई नहीं है, देखो यू हैव टू फाइट ऑन योर ओन, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज है, नोबडी टेल्स यू, ठीक है ना? सिर्फ डिफेंस की ही नहीं है, डिफेंस में तो खैर चलो टेक्नोलॉजी डिनाइड है, सुनना भी मना है कि अगर तुमने कुछ सुन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? तो इसलिए चलो वो तो एक अलग ही है, लेकिन इवन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट मंगा लो तुम, वो तो दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, है ना? तुम ऑर्डर करोगे आ जाएगा। और उसको सोचो अगर तुम कि रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो भैया वो नहीं होता, ये बता दूं। दे पैक इट इन सच ए वे, हमारे पिताजी बैठे हैं ना वहां, ठीक है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन ऐसी, मतलब काम ही इस तरह का है उनका कि पैकेजिंग ऐसी होती है कि एज सुन एज यू ओपन इट, आइदर यू कैन नॉट ओपन इट, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम खोल ही नहीं सकते, जो क्रिटिकल पार्ट होगा, लल्लू पंजू नहीं, जो क्रिटिकल पार्ट होगा ना उसका सेंसर जहां पे होगा वो तुम ओपन ही नहीं कर पाओगे। और अगर ओपन कर भी लिया तो उसको रीअसेंबल करना तो दूर की, वो तो गया इंस्ट्रूमेंट तो गया, वो तो छोड़ दो कि रीअसेंबल हो जाएगा। उसका प्रिंसिपल भी अगर समझ लोगे तो भी बहुत बड़ी बात है वो भी। ओके, देन यू कैन गो अहेड आफ्टर दैट कि किया क्या है, सब चीजें बिखर तो गई, चलो रीअसेंबल तो नहीं होता वो, है ना? तो इसके लिए तुम्हारा दिमाग क्या कुछ कहता है क्या कि कुछ किया जाए? डस्ट पार्टिकल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं हम? लाइट से कैसे? हाँ वही बताओ, कैसे लाइट से कैसे? दैट मीन्स हम डस्ट पार्टिकल्स को लाइट स्ट्रीम के थ्रू पास करें। लाइट इज गोइंग फ्रॉम, लेट अस से, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, देयर इज ए लाइट बीम, एज आई कैन अंडरस्टैंड, देयर इज ए लाइट बीम, है,
and through that light beam suppose the dust particle is passed. अब जब देखो डस्ट पार्टिकल पास होगा, बिल्कुल ठीक है, जब डस्ट पार्टिकल पास होता है तो दो चीजें होती हैं जब लाइट बीम के थ्रू पास होता है, ठीक है ना। एक तो है लाइट का एब्जॉर्प्शन विच ही हैज सेड, दूसरा है लाइट की स्कैटरिंग। कोई भी डस्ट, ये तुम बिल्कुल इस तरह से समझो, कभी तुमने मॉर्निंग में आंख मलते हुए जब उठे हो, ठीक है ना, और रूम में ना तुम्हारे धूप की आ रही है, अक्सर धूप की एक शीट जो है ना, वो कभी देखी है ना, उस धूप की शीट में पार्टिकल जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या चीज है, और ये चीज है। फ्रॉम दिस प्रिंसिपल द डस्ट पार्टिकल कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। वो जो है लाइट क्या हो रहा है कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो जो सनलाइट आ रही है ना उसको स्कैटर कर रहे हैं, एंड दैट स्कैटर्ड लाइट इज रीचिंग योर आईज। वो लाइट है जो तुम देख पा रहे हो, है ना, डस्ट पार्टिकल को, वो स्कैटर्ड लाइट की वजह से देख पा रहे हो। अगर वो स्कैटर्ड ना करें तो तुम देख नहीं सकते कभी भी उनको। लाइट की एक प्रॉपर्टी है, बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी है, लेकिन स्कैटरिंग, है ना। तो दिस इज वन वे, बिल्कुल ठीक है कि भाई डस्ट पार्टिकल्स को एक लाइन में वन आफ्टर द अदर, दैट मीन्स व्हाट यू नीड इज टू मेक ए नोजल। ए नोजल डिपेंड करता है व्हाट साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स का भी साइज होता है, देखो, ठीक है ना, 1 माइक्रोन से लेकर कितने माइक्रोन तक, है ना। डस्ट पार्टिकल्स का ऐसा नहीं है कि एक ही साइज के होते हैं। इस रूम में जो इस टाइम प्रेजेंट है वो एक ही साइज के हैं सारे, ऐसा खुदा ने कुछ नहीं बना रखा दुनिया को, ठीक है ना, सारे साइज के डस्ट पार्टिकल्स हैं। नाउ विच डस्ट पार्टिकल्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब जो छोटे होते हैं ना, जितना छोटा होता है खोटा है ना। छोटे डस्ट पार्टिकल जो है वो थ्रू नोज हमारे लंग्स में जाते हैं। बड़े वाले जो थोड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स है ना, उसके लिए तो ये ब्रश बना रखा है अंदर, बड़ा सुंदर सा नाक के अंदर, वो ब्रश जो है सफाई करता है, लेकिन छोटे डस्ट पार्टिकल्स को वो नहीं रोक पाता, ठीक है ना, वो लंग्स में चले जाते हैं और वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम करते हैं आपको बड़ा, ठीक है। तो दैट मीन्स आइडिया ये है कि पहले तो आप नोजल उस साइज की बनाओ जिस साइज के डस्ट पार्टिकल्स आपको मेजर करने हैं। अगर जो 1 माइक्रोन से हायर करने हैं तो उस हिसाब से उसका डाया नोजल का होना चाहिए, लार्जर है तो लार्जर, या मतलब कोई ना कोई फिल्टर ऐसा लगाओ। मेरा मतलब नोजल बनाने से यही है कि देयर आर फिल्टर्स ऑफ वेरियस साइजेस, उस फिल्टर में से पास किस डस्ट पार्टिकल को आप रेंज को पास कराना चाहते हो, सेट ऑफ फिल्टर्स। तो चलो खैर, मतलब डस्ट पार्टिकल आ गया किसी तरह से, ये तो चलो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पंप अगर ड्रॉ करेगा, जैसे एक पंप है, ये पंप अगर मान लो हमने लगा दिया, वैक्यूम पंप देख रहे हो ना, वैक्यूम पंप ड्रॉ करेगा तो इस फिल्टर के थ्रू एयर जो है वो यहां से आएगी, फ्रॉम अबव ये एयर आएगी। फ्लो मीटर लगा रखा है, वो तो फ्लो मेजरमेंट के लिए लगा रखा है यार, कि कितने लीटर्स एयर पर सेकंड फ्लो हो रही है, उस पर्पस के लिए, ठीक है ना। लेकिन आइडिया ये है कि इफ देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ डेस्टिनेशन, एंड एयर डस्ट पार्टिकल पासेस, then the light which is falling on the dust particle will be reflected back, will be scattered, मतलब, ठीक है ना। तो तुम्हें इस एक पर्टिकुलर मतलब किसी एंगल पे करना यह है कि डिटेक्टर लगाना है, ये सोर्स है, उसके बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन एक डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर जो है काउंट करता रहेगा कि डस्ट पार्टिकल कितने पास हो गए, ठीक है ना। न सिर्फ डिटेक्टर ये काउंट करेगा कि हाउ मेनी डस्ट पार्टिकल्स आर पास, रादर द voltage output of the detector whenever a dust particle pass, then depending on its size the width of the pulse will be decided। width of the pulse कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर डस्ट पार्टिकल बड़ा होगा ना तो जो आउटपुट होगा डिटेक्टर का, उसका जो पल्स है भाई होगा तो इस टाइप की पल्स ही ना, एक पार्टिकल आया चला गया, ठीक है ना, उसका थोड़ा फिर आया फिर पल्स आएगी, तो नंबर ऑफ पल्स काउंट कर लो, वो तो देगा तुम्हें कि हाउ मेनी पार्टिकल्स, वो तो पार्टिकल काउंटर बन गया, वो तो पार्टिकल काउंटर बना। जहां तक उसका सवाल है कि भाई व्हाट इज द डस्ट कंसंट्रेशन, उसके लिए पल्स विड्थ भी मेजर आपको करनी पड़ेगी। वो पल्स विड्थ आपको ये बताएगी व्हाट वाज द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल। तो एक तरह से उस पल्स विड्थ को मल्टीप्लाई करो
हर एक की पल्स विड्थ को मतलब ऐड कर दो तो पता लग जाएगा कितने mg डस्ट जो है वो पास हो गई। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इससे डिफरेंट मेथड लिया। व्हाट वी डिड वाज कि एक मतलब जैसे ब्लॉटिंग पेपर नहीं होता, ब्लॉटिंग पेपर समझते हो, जिससे स्याही, बचपन में स्याही तो गिराते ही थे, ठीक है ना, फिर उसके बाद में उसे सोखते भी थे, ठीक है ना। तो वो जो है बड़ी अच्छी तरह से वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो जैसे वो इंक को करता है उसका टेक्सचर ही ऐसा होता है कि वो डस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा यार, बड़े प्यार से, ठीक है ना, क्योंकि रफ सा होता है वो, तो वो डस्ट को भी करता है, उसके बाद में छोड़ता नहीं है उसको, ठीक है ना। तो जैसे तुम सपोज डस्ट पार्टिकल्स आर कमिंग, let them be deposited on a blotting paper, on a such type of paper for a particular period of time। क्या होगा, तुम देखोगे कि डस्ट की वजह से ना वहां पे ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट बन गया। जैसे जैसे मोर एंड मोर पार्टिकल्स विल बी सक्ड एंड they are getting deposited on that paper, then more black it will become with time, ठीक है ना। सिंपली तुम इसको कैलिब्रेट कर सकते हो, उसकी ब्लैकनेस को मतलब एक तरह से कैलिब्रेट कर लो इन टर्म्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इनिशियली व्हेन देयर वाज नो डस्ट पार्टिकल, देन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन लाइट वाज पासिंग एज इट इज विदाउट एटेन्यूएशन, विदाउट एटेन्यूएशन। तुम यहां पे देख सकते हो एक एलईडी सोर्स बिलो द दिस थिंग, यू कैन सी above there is a detector, when there is no dust particle light will be passing as it is, ठीक है ना। more and more dust particles are deposited on this paper, blacker and more black it will become with time। तुम देख लो कि कितनी लाइट जो है डिमिनिश हो गई है, उसको कंसंट्रेशन के साथ में कैलिब्रेट कर दो कि इतना ब्लैक हो गया है, ठीक है ना, इतनी ब्लैकिश हो गई है या इतनी लाइट इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है, तो दैट मीन्स कितने मिलीग्राम डस्ट डिपॉजिट हो गई होगी। दैट्स द आइडिया। इस तरह से निकाल लेते हैं इसका डस्ट कंसंट्रेशन रूम में कितनी है, एक गिवन टाइम में कितनी है। रूम का वॉल्यूम पता ही है, उससे डिवाइड करके मिलीग्राम यहां से निकाल लिए वॉल्यूम, या इस इंस्ट्रूमेंट को एक नॉन वॉल्यूम में रख दिया, चलो खुले में भी रख सकते हो, नॉन वॉल्यूम एनक्लोजर में भी रख सकते हो, तो उसी एनक्लोजर की तो डस्ट को ये सक करेगा, कहीं बाहर से थोड़ी ले आएगा, ठीक है ना। एक टाइट एनक्लोजर में रख दो, वॉल्यूम ऑफ दैट एनक्लोजर इज नोन, पता लग गया कि डस्ट कंसंट्रेशन कितनी है, नहीं। तो दिस इज द वे वी डिड इट। तो ये हमने डस्ट मार, तो बाकी तो जहां उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग की बात है वो सब माइक्रो कंट्रोलर से हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अगर लिक्विड की डेंसिटी है, तुम मेजर करना चाहते हो लिक्विड की डेंसिटी, कहां मेजर करते हैं सब, मैं तुम्हें एप्लीकेशन बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम लेट से शुगर बना रहे हो, शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री में जब शुगर बनती है तो जो केन जूस है वो पाइप में जब चलता है केन जूस, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। सारी शुगर एक जैसी नहीं होती है ना, तुमने कुछ देखा होगा कहीं व्हाइट शुगर होती है, थोड़ी सी येलो, है ना, उसके दाने भी का साइज अलग, वो सब क्रिस्टलाइजेशन उनका अलग, ठीक है। वो सब इसी से गवर्न होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं ना उसमें, सल्फर ये वो दुनिया भर की चीजें मिक्स की जाती है, कई इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं। आफ्टर एवरी सच मिक्सिंग वी नीड टू नो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो ताकि ये एक मतलब कंट्रोल्ड मैनर में सब कुछ चले कि सल्फर मिलाने के बाद में डेंसिटी इतनी हो गई, ठीक है ना, फिर इस चीज को मिक्स करने के बाद में डेंसिटी इतनी हो गई, लाइक दैट। ये शुगर फैक्ट्रीज को बहुत जरूरत है डेंसिटी मेजरमेंट की, ठीक है। और नॉट इवन दिस, जो शुगर पीछे जो शुगर केन जूस आ रहा है, सारे शुगर केन जूस भी तो प्योर एक जैसे नहीं होते यार। सारा क्या केन एक जैसा होता है, गन्ना एक जैसा होता है, गन्ना एक जैसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो कई कई मतलब कई का जूस जो है वो पतला होगा, कई का होगा, तो डेंसिटी मतलब वो मेजर करते हैं ताकि शुगर की जो क्वालिटी है वो एक पर्टिकुलर मेंटेन कर सकें। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू मेजर द डेंसिटी ऑफ शुगर केन जूस, है डेंसिटी ऑफ शुगर केन जूस। तो अब तुम क्या सोचते हो डेंसिटी कैसे मेजर की जा सकती है?
है ना। डेंसिटी कैसे मेजर कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है डेंसिटी मेजर करने का तरीका? हाँ बोलो कुछ भी। वाइब्रेटिंग ट्यूब, इट इज कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। ठीक, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इनफैक्ट जो डेंसिटी है ना, अगर तुम देखो तो उसकी डेफिनेशन में ही मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास वर्ड आता है, ठीक है ना। और मास जो रिलेटेड है किसी भी उसका, अगर तुम एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना, एक कंटेनर ले लो, उसमें लिक्विड फ्लो कराओ, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ना, एक पर्टिकुलर डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की, ठीक है ना। अगर वो पहले से वाइब्रेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन से एकदम या तो इंक्रीज हो जाएंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, डेंसिटी पे, या डिक्रीज हो जाएंगे एकदम से। जब वो डेंसिटी का लिक्विड नहीं आएगा ना, तो उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वैसी रहेगी, जिस वाइब्रेशन पे तुमने उसको वाइब्रेट करा रखा है वो वैसी रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर उस पे डेंसिटी पे उसके वाइब्रेशंस जो है ना तेज हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कहते हैं ना कि जो फौजी लोग हैं, जब वो किसी, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th 12th क्लास में, कि जब ट्रूप्स है, जब वो किसी उस पे से जाते हैं ब्रिज पे से, तो उनको क्यों कहा जाता है कि तुम डिफरेंट उससे चलो, ताल मिला के नहीं चलना, वैसे तो उनको कहा जाता है ताल मिला के चलो, 1 2 1 2। वहां पे ये कहा जाता है कि ताल मिला के नहीं चलोगे आप। क्यों कहा जाता है ये? वही वाइब्रेशंस, कि अगर वो सारे सारे ताल मिला ली उन्होंने और उनका नंबर इतना हुआ कि वो जो है ना, जो 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 उनका जो वाइब्रेशन है ब्रिज का, वो अपनी रेजोनेंस वैल्यू पे पहुंच गया, तो फिर जो है पुल जो है यूं यूं हो रहा होगा, पता है, देयर विल लार्ज वाइब्रेशंस इन द ब्रिज, और हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। तो डिफरेंट स्पीड पे या डिफरेंट उस पे चलने से ना वो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब उनके सारे वाइब्रेशंस ना कैंसिल आउट हो जाता है वो मामला। तो ये एक रेजोनेंस का फिनोमिना है दुनिया में। एक तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस तो तुम सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आरएलसी वो सब रेजोनेंस है ना, वहां पे करंट जी मैक्सिमम हो जाती है जी, पता नहीं कहीं मिनिमम हो जाती है, करंट और वोल्टेज आपस में बहुत दुखी करते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन रेजोनेंस का फिनोमिना वहां से नहीं आया, इनफैक्ट रेजोनेंस का फिनोमिना वाकई में फौजियों से ही आया, ठीक है ना, कि जब देखा कि यार ये तो भयंकर सा काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है ठीक है ना, तो पता चला कि यार एवरी बॉडी इन द वर्ल्ड vibrates at its natural frequency. Every body in the world is vibrating at its natural frequency. बेसिकली तो एटम्स है आखिर, ठीक है ना, कि कोई भी एटम है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे उसके मास के हिसाब से ना वो वाइब्रेट करता है, वहां से अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। चक्कर तो वहां से शुरू हुआ पड़ा है, लेकिन यार ये फिजिक्स वालों को ज्यादा भाव नहीं देते हम, ठीक है ना, फिर वो चढ़ जाते हैं यार हम इंजीनियर्स पे। तो इसलिए जो है ये समझो, सबको यही बताओ कि यार वहां तो पता नहीं क्या हो रहा था, एटम उटम का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है। तो अब जब ये पता है कि ऑल स्ट्रक्चर्स वाइब्रेट एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो एक तुमने 12th क्लास में या 10th में ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट पता नहीं किया है कि नहीं किया। एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट होता था, है ना। हाँ, उसमें क्या होता था, उसमें ऐसे हाथ में मारो, अच्छा फोरसेप को कभी देख लेना, फोरसेप समझते हो, ट्वीजर, उसको हाथ में मारो तो देखना तुम अपनी वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, वाइब्रेट करेगा ट्वीजर जो, तो उसके दो टाइन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड टाइन्स, वो ट्वीजर के दो तो टांगे हैं ना उनकी, वो टांगों से ही निकला होगा ये वर्ड टाइन्स, TINS, ठीक है ना। तो वहां से आ गया, तो वाइब्रेट करता है। तो अब हम क्या है, हमने क्या किया कि फिनोमिना ठीक है बिल्कुल, अब ये हमारे पास हमने क्या किया कि स्ट्रक्चर बनाई ट्यूनिंग फॉर्क टाइप की, जिसके नीचे ट्यूनिंग फॉर्क लिखा है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनाई स्टील की है। और इसके अंदर ये जो TX RX आप देख रहे हो ना, ये दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स माउंट कर दिए, है ना, यहाँ पे कैविटी बना के इसके अंदर दो क्रिस्टल्स माउंट कर दिए। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं
कि ये उनमें होता है जो एटम्स जो है ना, उनमें थोड़ी सी उनकी स्ट्रक्चर में ना थोड़ी सी वो होती है, मतलब एक तरह से ना, जहां नॉर्मली क्या होता है किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में जो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मैच करता है एक जगह पे। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मैच करती है। इसीलिए इन जनरल कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट कि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, वो तो एक अलग बात है कि ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जो बचपन में पढ़ाया जाता है वो तो ठीक है। लेकिन अगर जो दोनों इक्वल होते हुए भी, पॉजिटिव चार्जेस का नंबर इक्वल होते हुए भी, अगर उन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच ना करता तो एटम तुम्हारा न्यूट्रल ना होता, फिर वो डाइपोल बन जाता। डाइपोल यही तो होता है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ए डाइपोल, ठीक है ना, डाइपोल बन जाता। लेकिन कोई भी एटम इन नॉर्मल केस डाइपोल नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच करते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं वर्ल्ड में, जैसे क्वार्ट्स है ना, या कुछ फैब्रिकेटेड सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, बेरियम टाइटेनेट है, ठीक है ना, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट है, ये कुछ मटेरियल्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है। इनमें क्या होता है कि अगर तुम इनको बनाओगे ना, तो इनकी स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर मतलब वो आ जाती है, जिसको क्या कहोगे, डेफिशिएंसी, इस वर्ड इसको डेफिशिएंसी कहना चाहिए, कि ये नॉर्मल एटम की तरह से बिहेव नहीं करते, ठीक है ना। इनमें क्या है कि अगर तुम थोड़ा सा भी फोर्स लगा दो, मान लो एक डिस्क है जैसे, है ना, एक डिस्क है 50 पैसा या 1 रुपी कॉइन की तरह से एक डिस्क समझो, बेरियम टाइटेनेट की। अगर दोनों के बीच में एक फोर्स तुम लगा दोगे ना, सरफेसेस के बीच में, तो उनका पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में एक दूसरे से मिसमैच हो जाएंगे बाय अप्लाइंग ए फोर्स। वैसे तो ठीक है, नॉर्मल वे में वो ठीक है, नॉर्मल वे में कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, लेकिन उसको मिसमैच किया जा सकता है। नॉर्मल एटम में ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, उनकी स्ट्रक्चर मतलब ऐसी है। वाइस वर्सा आल्सो, यानी कि अगर मैं, तो ये तो हुआ कि अगर मैं फोर्स लगाऊं या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस को, फोर्स फिक्स्ड फोर्स लगाओगे तो फिक्स्ड अमाउंट का डाइपोल बनेगा, और अगर जो तुम फोर्स को वेरी करते रहोगे तो वो डाइपोल जो है ना उसका भी डिस्टेंस वेरी होता रहेगा। यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने जनरेट कर दिया, ठीक है ना, और वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारे उस पे, क्या नाम है, हाँ, अप्लाइड फोर्स पे, वाइब्रेशंस पे, ठीक है ना। ज्यादा वाइब्रेशन करोगे वो भी उसी, जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन दोगे उसी फ्रीक्वेंसी पे वो भी डाइपोल बन रहा होगा। वाइस वर्सा, अगर जो डाइपोल बन गया, ठीक है ना, तो वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस डाइपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस। इनकी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीजोइलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड पीजोइलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ मटेरियल्स में प्रॉपर्टी होती है। तो दैट इज, कहने का भाव ये है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही है कि अगर जो इन मटेरियल्स की दोनों सरफेस तुम समझ लो कि 50 पैसा या 1 रुपी कॉइन की तरह से मैंने अगर इसको ढाल दिया, बना लिया उस फॉर्म में, तो इफ आई अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस दिस, देन दे विल वाइब्रेट, ठीक है ना, एट दैट फ्रीक्वेंसी। और वाइस वर्सा, इफ दे आर, दोज वाइब्रेशंस आर कैरीड ऑन, मतलब कहीं पे वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पे मैं दूसरा क्रिस्टल लगा दूं, तो because of those vibrations that crystal will start vibrating, and when this start vibrating, उसके दोनों सरफेसेस क्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, वोल्टेज मिलेगी तुम्हें, ठीक है ना। इस बेस पे हमने एक अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर भी बनाया, मतलब ये देख के कि ये फिनोमिना होता है, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक का मतलब 20 किलोवाट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं ना, जो हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, ठीक है। तो अगर एक क्रिस्टल है 1 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, उसको तुम 1 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है का मतलब फिर उस क्रिस्टल की जो विड्थ है ना, जो λ/2 है विड्थ उसकी, उसी हिसाब से हो गई ना, 1 मेगाहर्ट्ज के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल सकते हैं,
ठीक है ना, कि उसका लैम्डा एयर में क्या हो गया, वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ना, वो फॉर्मूला नहीं था, वहां से लैम्डा निकाल के लैम्डा बाई 2 उसकी थिकनेस रखी जाए, है ना, और फिर 1 मेगाहर्ट्ज का ही सिग्नल उसको दिया जाए तो वो वाइब्रेट करेगा अच्छे से अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। जब तक कोई क्रिस्टल अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आता तब तक कुछ मतलब नहीं है उसका, तब तो उसकी वाइब्रेशन कैंसिल आउट, ठीक है। लेकिन अगर 1 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है और 1 मेगाहर्ट्ज का तुम सिग्नल दे रहे हो तो फिर तो वो छलांगे लगाएगा। वही वाली बात है कि मेरा दिल बाहर निकला, पकड़ के मैंने अंदर रख लिया वो वाली वो ऐसे छलांगे लगाएगा फिर तो, ठीक है। तो अगर सपोज कोई क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि यहां पर TX का मतलब एक क्रिस्टल, पीजो क्रिस्टल विच इज वाइब्रेटिंग, लेट्स से 1 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है और 1 मेगाहर्ट्ज का मैंने सिग्नल दे दिया, ये जी वाइब्रेट करने लगा, ठीक है ना। इस वाइब्रेशंस के कारण क्या होगा, ये पूरी स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने लगेगी। ये जो स्टील की स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ना, ट्यूनिंग फॉर्क जो लिखा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट विल वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी करीब 700-800 हर्ट्ज के करीब होती है। देखो क्रिस्टल वाइब्रेट भले ही 1 मेगाहर्ट्ज पे कर रहा हो, तुम इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को ये मत सोचना कि 1 मेगाहर्ट्ज पे वाइब्रेट करने लगे। कैसे कर लेगी यार, इतना बड़ा मास है स्टील का, वो 1 मेगाहर्ट्ज पे थोड़ी वाइब्रेट कर लेगा कि 1 सेकंड में वो 10⁻⁶ वाइब्रेशन हो जाएंगे उसके इतने बड़े मास के। तो मास पे डिपेंड करता है ना, इसका स्टील का मास होगा कुछ पूरी स्ट्रक्चर का, उस मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी उस पे ये वाइब्रेट करना अगर शुरू कर दे तो ये वो वाइब्रेशंस काफी उन वाइब्रेशंस का अच्छा खासा एम्पलीट्यूड होगा, है ना। अभी तक यही समझो कि अभी वाइब्रेशन शुरू नहीं हुए, 1 मिनट को, ठीक है ना, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करा दूं तो दोज वाइब्रेशंस विल बी एप्रिशिएबल, भयंकर वाइब्रेशंस होंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा एक क्रिस्टल लगा दिया RX, वो भी एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जो भी वाइब्रेशंस होंगे उसको ये सेंस करेगा, वाइब्रेशंस को सेंस करेगा। नाउ इस सिस्टम के साथ में अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन जनरेटर ले लिया मैंने, फंक्शन जनरेटर क्या करेगा, मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, है ना, कि स्पाइक इस क्रिस्टल को दे सकता हूं, ट्रांसमिटिंग क्रिस्टल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है ना। जब मैं इस क्रिस्टल को और मैंने इसको इस ट्यूनिंग फॉर्क को डिप कर दिया उस लिक्विड में, जिस लिक्विड की डेंसिटी मुझे डिटरमिन करनी है, उसमें मैंने इस सिस्टम को डिप कर दिया, ठीक है ना। क्रिस्टल देखो, क्रिस्टल अंदर है, क्रिस्टल इनसाइड द टाइन है, क्रिस्टल कोई वेट नहीं हो रही, वेटिंग नहीं हो रही क्रिस्टल की, भीग नहीं रहे, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड, दे आर सेफ, अंदर है वॉल के, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले बताया था, मैं स्लॉट काट के मैंने क्रिस्टल डाले हुए हैं, ये 2 स्लॉट, ठीक है ना। अब देखो मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे इसको वाइब्रेट कर रहा हूं, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जब मैं फंक्शन जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा, विच विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, डेफिनेटली तुम उस फ्रीक्वेंसी पे करते जाओ वाइब्रेट, और इस जो तुम्हारा दूसरा क्रिस्टल है ना उसकी वोल्टेज मेजर करते जाओ, उसके क्रॉस क्या आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सारा का सारा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन जनरेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल बाय द फंक्शन जनरेटर वो 700 हर्ट्ज है मान लो, जो कि और इस सिस्टम की भी मान लो 700 हर्ट्ज है, तो जब 700 हर्ट्ज पे का सिग्नल दूंगा ना मैं इसको, तब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा, उस टाइम ये वाइब्रेशंस जो है जबरदस्त होंगे, ठीक है ना। और रिसीविंग क्रिस्टल का आउटपुट जो है वो एकदम से इंक्रीज होगा, अगर मिलीवोल्ट्स में था तो वोल्ट्स तक पहुंच जाएगा, अनएम्प्लीफाइड, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी मास पे, जो इस सारे सिस्टम का मास है, और मास के अंदर क्या है, सिर्फ ये ट्यूनिंग फॉर्क ही नहीं है, वो लिक्विड भी है जिसमें मैंने इसको डिप कर रखा है। ट्यूनिंग फॉर्क का तो कांस्टेंट है मामला, तो वेरिएशन अगर होगा, मान लो ऑयल में डिप करता हूं तो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आएगा, वाटर में करता हूं और कुछ, अल्कोहल में करता हूं और कुछ, ग्लिसरीन में करता हूं और कुछ, ये वाइब्रेशन की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है चेंज क्यों हो रही है,
ये चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि मास सिस्टम का चेंज हो रहा है, ओवरऑल मास, जिसमें डिप्ड है मामला वो सारा, ठीक है ना। वो अलग नहीं है लिक्विड, उसका पार्ट बन गया एक तरह से, है ना। उसके बेस पे तुम इसको डेंसिटी के टर्म्स में कैलिब्रेट कर लो उस फ्रीक्वेंसी को, कि जब 700 पे होता है तो वाटर में डिप था, जब 720 पे होता है तो अल्कोहल में डिप था, जब इतने पे होता है तो इसमें था। आपका डेंसिटी मीटर बन गया। कोई भी लिक्विड दे दो उसके बाद में मुझे अननोन, मैं बता दूंगा तुम्हें कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ऑफलाइन ही नहीं है। क्या करते हैं इसको, इसको जो है जैसे पाइपलाइन जा रही है ना इंडस्ट्री में, तो पाइपलाइन जहां पे 90 डिग्री का बैंड आता है, भाई पाइपलाइन जो है कोई ये थोड़ी किलोमीटर तक चल रही है, पाइपलाइन चल रही है फिर ऊपर जाएगी फिर ऐसी जाएगी, फिर पता नहीं कि जूस कैसे सर्कुलेट करते हैं, वो एक ड्रम में इकट्ठा हो रहा है फिर वहां से फिर पंपिंग हो रही है उसकी, शुगर इंडस्ट्री में अभी जाके तो पाइप ही पाइप है। तो जहां पे 90 डिग्री का बैंड है वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो नहीं है ना। स्ट्रेट पाइप में तो लिक्विड का फ्लो रेट है कुछ, लेकिन वहां क्या है जहां पे 90 डिग्री का बैंड है वहां पे लिक्विड कम्स टू स्टेशनरी स्टेट टेम्परेरीली, देख लो तुम। फिर उसके बाद में फिर वेलोसिटी लेता है लिक्विड जो है। तो वहां हम जब माउंट करते हैं ना, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लो रेट अगर तुमने फ्लो में किया तब तो पता नहीं उसकी फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डेंसिटी बहुत अफेक्ट हो जाएगी। ऐसी जगह माउंट करो जहां पे लिक्विड का फ्लो रेट जीरो हो। लैब में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता ही है ये, इसमें कोई, क्योंकि वहां तो फिर ऑफलाइन हो गया ना वो, तो मैं लिक्विड लाया, ये लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड भरा मैंने, ये डिप किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की, उससे लो 2 सेकंड में बता दूंगा मैं तो क्या है इसकी डेंसिटी। लेकिन ऑनलाइन करना है अगर जो, तो ऑनलाइन किया और वहां पे माउंट किया इसको जहां पे जो बैंड होता है 90 डिग्री का, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। इससे इनपुट पे करें। हाँ बोलो। सर अगर स्ट्रेट पाइपलाइन है तो वहाँ पे सपोज हम लोग के पास आप जो ऑनलाइन के केस बोलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री के बैंड अलावा जो मेजरिंग ट्यूब हम लोग यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो मेजरिंग ट्यूब का ये ट्यूब तो बस ये ट्यूनिंग फॉर्क के 2 टाइम्स हैं, समझ ले। नहीं इस केस के लिए नहीं। अच्छा हाँ, लैब पर्पस के लिए यूज होगा है ना सर। नहीं इसी नहीं लैब पर्पस के लिए नहीं, इसी को कह रहा हूं, इसकी 2 टाइम्स जो है ना ये पाइप में वहां पे वो करके माउंट करने के लिए। आप जो यहाँ पे वाइब्रेटिंग ये जो फोक यूज कर रहे हैं, हाँ मैं ये सिस्टम अगर मैं ट्यूब में, ठीक है हाँ ट्यूब, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे वो डेंसिटी मीटर्स भी हैं, वो डेंसिटी मीटर्स भी अवेलेबल हैं जो कि ट्यूब वाले तुम कह रहे हो, उसमें इस टाइप की कोरुगेटेड ट्यूब बनाते हैं, वो कोरुगेटेड है ना, और उसमें लिक्विड जब पास होता है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन वो जो है हम ये देखो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट तो है, जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो उस पे जाती है जो सस्ता अवेलेबल है उनको। ये एक प्रॉब्लम मतलब है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ये देखती है कि यार वो माउंट करेंगे हम जो हमें सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव, तो फिर देखना पड़ता है, ये चीजें तब आती हैं रास्ते, है ना। तो क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, मतलब इसमें हार्डली एक ट्यूब ही, ये जो है ना ट्यूनिंग फॉर्क, एक बार आपको इसका तो ऑफकोर्स मशीनिंग से बनाना है इसको, उसके बिना तो, और स्लॉट काटने हैं, ईडीएम से स्लॉट काटने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, तो अंदर के स्लॉट बनाने पड़ते हैं 2 जिनमें 2 क्रिस्टल फिर बैठ जाएं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जिंदगी में सुखी सुख है, ठीक है ना, अल्लाह क्या दे जाएगी, ठीक है ना, जिंदगी में उसके बाद सुख। और कहावत है ना कि एक बंदा जो था वो अपनी कुंडली दिखाने गया पंडित को अपनी कुंडली दिखाने गया, तो पंडित ने उसकी कुंडली देख ली, कुंडली देख ली, ग्रह कहाँ है, पहले पंडित ये स्टडी करता है कि ग्रह वह कहाँ बैठा है ना, गुरु कहाँ बैठा है, ये शुक्र कहाँ बैठा है, दुखी तो नहीं कर रहे, कौन सा नीचकार, कौन सा उसको ऊंची दृष्टि से देख रहा है, कौन सा नीचे देख लिया जी पंडित ने। फिर उसके बाद उससे पूछा कि अब बता दो क्या सवाल है तेरा, है सवाल पूछते हो।
अब पूरी मास्टरी हो गई। कहता जी मेरी शादी नहीं होती। तो पंडित कहता है शादी होगी कैसे, तेरी कुंडली में तो सुख ही सुख लिखा है। कहां से होगी, तो वाली बात है। तो उसके बाद सुख है, एक बार बना लिया ना तो फिर सही बात है। एक भुक्त होगी तो बिना मतलब। ठीक है। अच्छा, ये देखो ये तुम्हें मैं बता रहा हूं बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है। जो लोग जिनकी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गई, ठीक है ना, उन लोगों को, और जो ये बॉटम हाफ जो है ना जिनका बेकार हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, वो हो गई तो यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता, तो दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। चलने की बात तो बहुत दूर की है, खड़े भी नहीं हो सकते वो लोग, उनको पैराप्लेजिक्स कहते हैं। ऐसे लोगों को पैराप्लेजिक्स बोलते हैं, है ना। तो अगर मान लो ऐसा पेशेंट है पैराप्लेजिक है, अब उसको मान लो चलाना है हमने किस तरह से, ठीक है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर, FES बोलते हैं उसको, फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर। वो फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर क्या करता है कि जिस तरह से तुम कैसे चलते हो, जब तुम चलते हो तो क्या होता है, तुम्हारी मसल्स जो है ना वो ऑपरेट होती है, ठीक है ना। जब तुम कोई भी एक्शन करते हो, चलने की बात नहीं कर रहा मैं, खाना खा रहे हो तो हाथ की मसल्स ऑपरेट हो रही हैं, नेचुरली खाना खाते टाइम पैर की तो नहीं होंगी, हाथ की होंगी, है ना, चलते टाइम पैर की होंगी, एंड सो ऑन। मतलब जो भी पार्ट यूज हो रहा है वहां की मसल्स यूज होती हैं, और वो मसल्स जो हैं जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या जब भी रिलैक्स होंगी, कोई भी मसल है, तुम कोई चीज उठा रहे हो तो मसल तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलीज होती है, रिलैक्स होती है ना? इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। मसल्स, जिस तरह से हमारा जो हार्ट है वो ECG सिग्नल जनरेट करता है, या ब्रेन जो है वो EEG सिग्नल जनरेट करता है, उसी तरह से मसल्स जो है वो इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG सिग्नल जनरेट करती है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसके अलावा भी आईज जो जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम बोलते हैं उस सिग्नल को, है ना। ऐसे 10-15 सिग्नल हैं बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल नेचर के हैं, ठीक है। तो वो सिग्नल जनरेट होता है, और वो सिग्नल जब जनरेट होता है उसकी वजह से सर्टेन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन साथ में होता है। तो ये पूरी एक मतलब प्रोसेस है जो कि हमको चलवाता है। अब जिस बेचारे के मसल्स खराब हो गई हैं, पैराप्लेजिक की मसल्स खराब हो गई, क्योंकि उनमें मसल्स तो तभी ऑपरेट होंगी ना जब वहां पे ब्लड फ्लो होगा। मसल्स में जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बेकार है, ठीक है ना। वो खराब हो गई क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गई, उसी के थ्रू कंट्रोल होता है सारा ब्लड का। ऐसे बंदों को कैसे चलाया जाए, चलाना तो है यार उसको, ऐसे नहीं छोड़ दो उसको बेचारे को, ठीक है ना। उसको ऐसे नहीं छोड़ दो, उसके ऊपर थोड़ा सा उसके लिए भी कुछ करो। क्या करोगे उसके लिए, कैसे चलाया जाए उसको, उसी तरह चलाया जाए जिस तरह से ह्यूमन बीइंग चलता है, कि हमारी वोल्टेज जो है वो तो जनरेट हो रही है क्योंकि खुदा ने हमें अभी ठीक रख रखा है ना, अल्लाह ताला ने। लेकिन जिनका ठीक नहीं है हिसाब किताब, तो उनको अगर मैं करंट पल्सेस दूं मसल्स को, तो उनकी मसल जो है एक्टिवेट होंगी। किसी मसल को अगर तुम लैब में भी टेस्ट करो ना, कभी करने का मौका मिले तो कर लेना, है ना, अपनी मसल नहीं कोई और। मसल को अलग से रखो, और उसको अगर करंट इंपल्स दो ना तो मसल उछलेगी, देखना। मसल उछलती है तो वो इसीलिए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोगे वो होगी, आदत है उसकी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम मसल को मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू कर देती है। तो जो फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है उसके केस ओनली थिंग इज कि तुमको ये डिटरमिन करना होता है चलते टाइम, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी करंट पल्स, मतलब उसको करंट पल्स तो देनी है, यहाँ पे जो मसल्स हैं लेग्स में, उसको थाइस में ये सब करंट पल्स देनी है, लेकिन मसल आइडेंटिफिकेशन करना है, और सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में पल्स देनी है, ठीक है ना। वो सीक्वेंस सही होनी चाहिए कि इस मसल के बाद में इस मसल में करंट पल्स जानी चाहिए। पल्स तो जनरेट हो जाती है, पल्स जनरेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना। करंट पल्सेस जनरेट हो जाती है, बट वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कि किस मसल में, उसके लिए सर्किट बनेगा चलिए और स्विचिंग होगी,
स्विचिंग सर्किट बनेगा एक, है ना, ये ऑन हो जाए, ये वाला जो है ऑफ हो जाए, रिले से करो चाहे एनालॉग स्विचेस से करो, किसी भी तरह से करो, मतलब ये एनालॉग स्विच ऑन हो जाए, वो ऑफ हो जाए, वो ऑफ हो जाए, है ना, तो बंदा चल सकेगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर उल्टा कर दिया काम तो उल्टा चलने लगेगा, ऐसे नहीं चलने लगेगा, ठीक है ना, तो सीधा ही चलेगा, लेकिन उसके लिए सीक्वेंस ही होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर। तो इसमें जो है यहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, क्योंकि अब फर्क पता लगता है माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ पे वाकई में जहाँ पे कंट्रोल नीडेड है वहां पे तुम्हें पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और पोर्ट्स जो हैं वो तो माइक्रो कंट्रोलर के पास है। माइक्रो प्रोसेसर के पास तो फिर तुम एक्सटर्नल 8255 वगैरह लगाओगे ना वहां, तो है ना, पीपीआई जिसको बोलते हो, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन एज सच माइक्रो कंट्रोलर के पास में ये पहले से ही है एक तरह से 8051 या, और वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इस टाइप की पल्सेस जो है जनरेट होनी है, कि एक सीक्वेंस ऑफ पल्स या पोर्ट पे कुछ रोटेशन करना है, कि यहाँ से पल्स जनरेट हुई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट से हुई, फिर लाइक दैट ना, एक सीक्वेंस जब जनरेट करनी है, वहाँ पे पोर्ट्स की बहुत स्ट्रक्चर होता है। ये तो जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये धंधे मतलब हम करते हैं, ये दिस इज आवर रिसर्च वर्क विच वी हैव डन। तो हम भी, खैर ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत सफलता हमें मिलती है। अब बंदा है जैसे जिस पर इसको टेस्ट किया उसको हम खड़ा तो कर पाए, लेकिन चलवा नहीं पाए। खड़ा तो कर दिया अपनी जगह से, चल नहीं पाया वो, क्योंकि वो सीक्वेंस हमें भी नहीं पता होती यार, वो डॉक्टर्स को पता होती है फिर। और डॉक्टर्स एक बात समझ लेना, इंजीनियर्स को बेवकूफ समझते हैं। आम ये वो है, एक डॉक्टर को कहोगे कि मेरी हेल्प कर दो, तो इंजीनियर्स उसके बिना काम, बायोमेडिकल में की बात कर रहा हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कभी भी आप विदाउट डॉक्टर काम नहीं कर सकते। उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि डोमेन नॉलेज तो उसको है ना, ठीक है ना। और डॉक्टर्स जो है वो यार इतने बिजी होते हैं, मतलब सुबह शाम तक अपने पेशेंट्स के साथ में, कि वो हम लोगों को डफर ही समझे तो वही ठीक है। बेचारा उनका पेशेंट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है ना। तो वो टाइम नहीं देते इतना कि भाई तुम्हें मसल के बारे में समझाएं बैठ के कि ये मसल पे ये कर दो और उस पे वो कर दो, खुद ही फाइट मार के जो कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो इसी तरह से माई इलेक्ट्रिक आर्म एक बनाई, जिनका मान लो यहाँ से एम्प्यूट हो गया, जिनकी आर्म जो है यहाँ से एम्प्यूटेशन हो गया, उनका क्या करोगे, ठीक है ना। उनको एक हमने आर्टिफिशियल आर्म देनी है। अब आर्टिफिशियल आर्म कॉस्मेटिक नहीं कह रहा मैं, कॉस्मेटिक वो जो मार्केट में वैसी आती है 3000 रुपए वाली, वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह पे रहेगी ना, ऐसा है तो उसका फायदा क्या है ना। आर्म लाइक अवर्स, हमारी आर्म जिस तरह से काम करती है उस तरह की आर्म देनी है उनको। अब हमारी आर्म कैसे काम करती है, फिर वही बात है कि जब तुम कोई चीज पकड़ते हो, ठीक है ना, इस पार्ट को कहते हैं हैंड, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर रहा हूँ। इस पार्ट को कहते हैं हैंड, और इस पार्ट को कहते हैं लोअर आर्म, है ना। ये अपर आर्म हो गई, ये रिस्ट हो गई, ये पार्ट रिस्ट है, ठीक है ना। लोअर आर्म या बिलो एल्बो एक ही बात है ना। ये अबव एल्बो या अपर आर्म, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ये लोअर लिम्ब के भी दो पोर्शन हो गए, अबव नी, बिलो नी, ठीक है ना। तो ये नोमेनक्लेचर है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो जिसका एम्पुटेशन हो गया बिलो नी, उसको आर्म देनी है और हैंड देना है, ठीक है ना। और देना ऐसा है जो मैंने कहा, जैसे हमारा क्या होता है, जब तुम यहां से पकड़ते हो, इसको मैंने पकड़ा, जब मैंने इस गिलास को पकड़ा है ना, तो मेरी यहाँ पे जो ये है ना मसल, इस जगह पे वो थोड़ी वो हो गई, हाँ कांटेक्ट हो गई है वो, है ना। और जब मैंने गिलास को रिलैक्स कर दिया ना, छोड़ दिया, तो मेरी मसल रिलैक्स हो गई। हाथ खुला हुआ है, रिलैक्स है। जब मेरा हाथ बंद है, ये इस तरह से पकड़ रखा है, और जितना हैवी होगा, है ना, ऑब्जेक्ट, उतना ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखना। इसका मतलब तुम ये नहीं कि हनुमान जी की तरफ पर्वत उठा लोगे, लेकिन हाँ, मोर द हैवियर द ऑब्जेक्ट, मोर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन। अब जो जिनका एम्पुटेशन हो गया, वो क्या करें? पहली बात तो वो ये करें कि अपना, अगर आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने, तो अपना हाथ कम से कम घुमाते रहे, चलाते रहे। दैट मूवमेंट ऑफ हैंड विल कीप देयर मसल्स एक्टिव।
ठीक है ना, क्योंकि मसल्स एक बार डेड हो गई उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर तुम्हारा बायोलॉजिकल यार दिल की धड़कन ही रुक गई, फिर कह रहे हो डॉक्टर से, उसके सिर पड़ रहे हो कि तू कर दे, फिर क्या कर लेगा वो उसके बाद में, ठीक है ना। तो आइडिया यह है कि मसल्स शुड रिमेन एक्टिव। कौन सी मसल्स? जो रेजिडुअल स्टंप है, एवरी एम्प्यूटी हैज ए रेजिडुअल स्टंप, ये याद रख लो, ठीक है। तो उस रेजिडुअल स्टंप की एक्टिविटी अगर मेंटेन्ड है तो तुम उसका यू कैन मेक यूज ऑफ इट। व्हाट ही डजंट हैव इज द हैंड, आर्म एंड द हैंड, लेकिन उसके पास में मसल तो है, और जब भी वो किसी चीज को लिफ्ट करने की सोचता है तो उसकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी हो रही है, मतलब उसके पास ये यूएसबी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यूएसबी तो तुम्हारे पास है ना, उसके पास नहीं है। तो दैट मीन्स वी कैन माउंट द इलेक्ट्रोड्स हियर, और उन इलेक्ट्रोड से सिग्नल लेके हम जो है इस मोटर को रोटेट कर सकते हैं, बाय विच हैंड कैन ओपन एंड क्लोज। तो 10 काम कर सकता है ना। तो दिस आर्म इज वन ऑफ देम, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछना हो तो वो पूछ लो। सिमिलरली वी मेड नी ऑल्सो, ठीक है ना, नी भी बनाई हमने। नी में ये मानते हुए कि दोनों पैरों की नी, दोनों पैर उसके नी कटे हुए हैं, वन ऑफ द पैर इस कटा, ठीक है ना, दोनों पैर मत काट देना, फिर कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि द सेकंड लेग विच इज एम्प्यूटेड, वो जो हमने आर्टिफिशियल दी है उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो ठीक वाले पैर से होती है। तो ठीक वाला पैर जो है ना, दैट गिव्स द पैरामीटर्स, तुम्हारी स्पीड ऑफ वॉकिंग क्या है, तुम्हारा नी बेंडिंग क्या है, तुम्हारी फुट क्लियरेंस क्या है, वो हर एक की यूनिक होती है ना, सबकी एक जैसी नहीं होती। तुम्हारा वे ऑफ वॉकिंग यूनिक है, तुम्हारा ही है, वो दूसरे का नहीं है। और जब तक दूसरी लेग जो है वो सिंक्रोनिज्म में नहीं होगी ना, एक टांग उठ रही है इतनी, तो फिर कौन सा जानवर होता है वो देख लो, ठीक है ना। तो और कुछ, ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज, कुछ तो पूछ लो, मैंने तुम्हें इतनी सारी बात सुनाई। Yes, audience, question? सर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने जो बताया था, हाँ, करंट को करंट पर देते हैं, पूरी बॉडी में करंट ना मसल्स में, वो नीडल इलेक्ट्रोड्स के थ्रू दे दिया। नीडल इलेक्ट्रोड्स जो है ना, दे में आपको बॉडी के अंदर मतलब कनेक्शन तोड़ना पड़ता है। नहीं, वो उसी मसल जो जहां जो नीडल जो है ना, जिस मसल फाइब्रिल को कांटेक्ट करती है ना, सिर्फ उसी मसल फाइब्रिल में करंट होता है, और कहीं नहीं जाता बॉडी में। और कहीं वो बीच में और चीजें जो है, बोन है, ये है, वो जाने ही नहीं देगी उसको। यार उस मसल फाइब्रिल में ही करंट पहुंच जाए ना, वही बहुत है, ठीक है ना, उसमें पहुंचा दो ना, बहुत है। यार ये चीजें कंडक्टर थोड़ी है कोई, तुम सोच रहे हो कॉपर वायर है क्या ये? ऐसा नहीं है, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये करंट जो है मिली एम्पेयर्स में करंट होती है। 220 वोल्ट को पकड़ के तुम दौड़ेगी तो दौड़ेगी, वो तो एम्पियर्स में करंट है। तो फिर मत कहना कि आवाज नहीं देती है, इसको मत पकड़ देना। जो मैं करंट की बात कर रहा हूँ दैट इज मिली एम्पियर, ठीक है ना। So we have come to the end of this lecture. I'm really thankful to Dr. Amod Kumar, who has taken out his valuable time for sharing his experiences with you. And I'm sure that all of you have been motivated by his experience, and all of our participants also. And tomorrow we'll meet again at 10 in the morning. Thank you so much, sir. Thank you.